Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you will be fine. Today we are going to discuss the topic the role of guidance and counseling personnel. And under this topic we are going to explain the role of career counselor. इसमें हम ये देखेंगे कि करियर काउंसलर का रोल बुनियादी तौर पर क्या है और टीचर एज ए करियर काउंसलर अपना रोल कैसे प्ले कर सकता है। एक स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जहाँ भी एक टीचर पढ़ा रहा है वो अपनी टीचिंग के साथ साथ स्टूडेंट्स का कैरियर डेवलपमेंट किस तरीके से बेहतर कर सकता है एंड व्हाट he or she perform his particular role as career counselor. So this is our today's topic, and I hope this lecture will be very useful for you to understand the basic concept of career and the roles and responsibilities of career counselor, and what are the requirements for a career counselor to be kept in mind so that he or she may provide better career counseling to his clients or students. So what is career counseling? Career counseling is actually a process in which career counselor gives suggestions, provides techniques and methodologies and techniques to overcome the problematic concerns of clients or students. So what is career counseling? It's very confusing, looking confusing. So we are going to explain it, what actually is career counseling all about. So what is the importance of counseling? And especially we are going to discuss and elaborate what is the importance of career counseling for students. Students at school level, at college level, at university level, wherever he or she is. जैसा कि आप देख सकते हैं कि करियर काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस के हवाले से और पाकिस्तानी यूथ के हवाले से ख़ास तौर पर पाकिस्तान में डिफरेंट आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं, आर्टिकल्स लिखे गए हैं और रिसर्च की गई है कि करियर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है और हमारे यहाँ पर्टिकुलरली इन पाकिस्तानी यूथ में लैक ऑफ करियर काउंसलिंग की कौन सी वजूहात हैं एंड टू ओवरकम द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस एंड प्रॉब्लमेटिक कंसर्न्स एंड द हर्डल्स, ताकि हम बेहतर से बेहतर करियर काउंसलिंग की तरफ बढ़ सकें और स्टूडेंट्स की बेहतरीन करियर काउंसलिंग कर सकें। आप देख रहे हैं कि ये जो आर्टिकल आपके सामने है ये द नेशन न्यूज़पेपर से है और इसकी हेडिंग है पाकिस्तानी यूथ एंड लैक ऑफ करियर काउंसलिंग। यानी पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उनकी करियर काउंसलिंग प्रॉपर नहीं की जाती, उसमें कमी है। देयर इज़ लैक ऑफ करियर काउंसलिंग एंड यू कैन सी दैट here it is written that Pakistani youth of the 21st century is living an era of unemployment, frustration and mental illness due to our higher education institutes that have become failed to deliver quality education and the most important, a good career counseling even in renowned universities of Pakistan. इसका मतलब ये है कि ये बताया जा रहा है कि there are number of issues, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी नौजवान नस्ल को, पाकिस्तानी यूथ को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, रोज़गार का ना होना, देयर इज़ फ्रस्ट्रेशन प्रॉब्लम एंड मेंटल इलनेस, मेंटल प्रॉब्लम्स। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि हमारा जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है या हमारा तालीमी निज़ाम जो है और हमारे जो अदारे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बेहतरीन करियर काउंसलिंग नहीं कर पा रहे।
and also they are not delivering quality education. So that's why there are problems of unemployment for youth later on in life, and they are frustrated, and there are mental illnesses they are facing. So these are the real problems of Pakistani youth, the Pakistani students. And also it is mentioning that Pakistani students even don't understand and know about their strengths and weaknesses. What are their strengths, what they can do, what sort of potentialities they have, उनके अंदर कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं, उनके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, उनके माइनस पॉइंट्स क्या हैं, उनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, और किन किन फील्ड्स में वो आगे जा सकते हैं. देयर एप्टीट्यूड, देयर इंटरेस्ट, देयर मोटिवेशन, देयर स्ट्रेंथ्स, even they don't know about this. So this particular situation is damaging their personality. उनकी शख्सियत को मुतासिर कर रहा है ये पहलू, और वो परेशानी में बहुत ज़्यादा परेशान हैं रिलेटेड टू देयर फ्यूचर. मुस्तकबिल के हवाले से वो कौन सा पेशा अख्तियार करें, वो किस प्रोफेशन में जाएं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं. और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ये किसकी ज़िम्मेदारी है. इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाकिस्तान दैट दे शुड प्रोवाइड अ पर्टिकुलर वे, अ सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तानी यूथ, द स्टूडेंट्स, फॉर देयर career counseling, so that they may be able to choose or select the best career opportunity for their futuristic point of view. जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक और न्यूज़पेपर है जिसमें आर्टिकल पब्लिश किया गया है, एंड इट्स टाइटल इज़ नीड फॉर करियर काउंसलिंग. और आप देख सकते हैं कि इसमें भी यही बताया जा रहा है कि करियर काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और ये प्रोसेस स्कूल लेवल से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, और जहाँ टीचर का रोल टीचिंग का है वहाँ उसके साथ साथ उसके और भी कई रोल्स हैं. वन ऑफ देम इज़ द रोल एज करियर काउंसलर. टीचर ने बच्चों को करियर काउंसलिंग के हवाले से बताना है और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, उनकी काउंसलिंग करनी है कि फ्यूचर के हवाले से उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और किस तरह से वो आगे अपने मुस्तकबिल में कौन सा प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, किस फील्ड में उनको जाना चाहिए, कौन सा बेहतर प्रोफेशन उनके लिए हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड लेवल. तो ये काम टीचर की ज़िम्मेदारी में शामिल होता है और उसका एक रोल है एज ए करियर काउंसलर. तो उसे अपना ये रोल बेहतर तौर पर परफॉर्म करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की बेहतर से बेहतर करियर काउंसलिंग की जा सके. सो व्हाट इज़ करियर काउंसलिंग? करियर काउंसलिंग इज़ अ टाइप ऑफ एडवाइस गिविंग and support provided by career counselors to their clients to help the clients manage their journey through life, learning and work challenges, meaning career. Career counseling क्या है कि एक तरह की एडवाइस गिविंग है, यानी आप एक मशवरा देते हैं अपने क्लाइंट को, एंड दैट क्लाइंट मे बी एनी पर्सन, एनी इंडिविजुअल. इन एजुकेशनल सेटिंग ही और शी मे बी योर स्टूडेंट. वो आपका स्टूडेंट हो सकता है, वो लर्नर हो सकता है. वो आपके पास आएगा, अपनी प्रॉब्लमेटिक कंसर्न्स को बताएगा और उसको सुनने के बाद आप उसको एक मुफीद मशवरा देंगे, उनको एडवाइस देंगे. आप एडवाइस देंगे कि आप फ्यूचर से रिलेटेड अगर ये कर लें तो आपके मसाइल हल हो सकते हैं, या किस पर्टिकुलर फील्ड को सिलेक्ट करना है आपने, किस शोबे में आप जाना चाहते हैं, किस प्रोफेशन को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका एप्टीट्यूड लेवल क्या है, इसको आइडेंटिफाई करना. तो ये एक तरह की सपोर्ट है और एक तरह की एडवाइस गिविंग है जो कि करियर काउंसलर प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को, ताकि वो अपनी लाइफ को मैनेज कर पाएँ, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर पाएँ और अपने वर्क चेंजेस को इम्प्रूव करते हैं, यानी करियर डेवलपमेंट बेहतर हो सके उनकी.
वो बेहतर से बेहतर करियर चॉइसेस कर सकें और अपने करियर को मैनेज कर पाएँ और उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट के हवाले से जान पाएँ और कौन कौन से करियर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो किसी भी करियर में आ सकते हैं, इसको समझ पाएँ और उसके मुताबिक डील कर पाएँ या सिलेक्ट कर पाएँ अपना बेहतरीन प्रोफेशन या करियर जिसमें वो जाना पसंद करते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम करियर काउंसलिंग है। सो व्हाट इज़ अ करियर काउंसलर? किसे हम कहेंगे कि कौन करियर काउंसलर हो सकता है या होता है? सो देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ वेयर वी आर ऑल फेस्ड विद मेकिंग बिग डिसीजंस। ज़िंदगी में बहुत सारे मौके आते हैं जहाँ पे हमें बड़े बड़े फ़ैसले करने पड़ते हैं, हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, फ़ैसला साजी करनी पड़ती है। तो उनमें से वन ऑफ देम इज़ चूजिंग द राइट करियर। उनमें से एक सबसे बड़ा फ़ैसला ये है कि आपने कौन सा करियर चूज़ करना है, कौन सा करियर सिलेक्ट करना है। So career counselors are trained to help uncover all the things we need to think about along with useful tips that will hopefully lead us to making the right choice. तो जो करियर काउंसलर्स होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, उनके पास एक्सपर्टीज़ होती है, उनके पास स्किल्स होती हैं, उनके पास प्रॉपर नॉलेज होता है उस फील्ड के हवाले से और वो जानते हैं तमाम चीज़ों को और उसके मद्देनज़र रखते हुए वो बहुत ही यूज़फुल टिप्स प्रोवाइड करते हैं, वो एडवाइस प्रोवाइड करते हैं कि जो फ्यूचर के हवाले से बेहतरीन चॉइसेस के हवाले से आपका जो क्लाइंट है वो बेहतर से बेहतर डिसीजन मेकिंग करने के काबिल हो सके रिलेटेड टू करियर चॉइस एंड सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर करियर। So what does a career counselor do? A career counselor is trained to help people with their career choice. अभी हम बात कर रहे थे कि he is a trained person, उसके पास expertise है, उसके पास knowledge है, he knows each and every aspect. Whether the person is new to the working world or simply desires a change of profession, a career counselor will be able to guide them in the best possible direction. तो क्योंकि वो समझता है, वो जानता है each and everything, that's why he will guide his client in a best possible direction. जो कि बेहतरीन रास्ता होगा वो उसको बताएगा कि this direction is the best one direction. इस तरफ आप जाएंगे तो ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है और इस तरफ अगर जाएंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ करियर काउंसलर? उसमें प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करेगा? अ थॉरो हिस्ट्री ऑफ क्लाइंट एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, स्किल्स, पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। तो बेहतरीन रिजल्ट के लिए वो क्लाइंट की हिस्ट्री लेगा, यानी उसमें एम्प्लॉयमेंट के हवाले से उसकी एजुकेशन, उसकी स्किल्स, उसकी पर्सनैलिटी, शख्सियत, his or her interest, his aptitude। और ये प्रोसेस कैसे आप कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे इन चीज़ों को मालूम करने के लिए। तो देर आर नंबर ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स दैट एज ए करियर काउंसलर यू कैन अडॉप्ट और यू कैन ऑप्ट। वन ऑफ देम इज़ इंटरव्यूइंग प्रोसेस। आप इंटरव्यू कर सकते हैं अपने क्लाइंट से, आप रैपो बिल्डिंग कर सकते हैं, आप एक अच्छा माहौल, साजगार माहौल बनाएंगे उसके साथ जिसमें वो आपसे शेयर करेगा अपनी प्रॉब्लम्स, अपने मसाइल बताएगा। ही विल डिस्कस एंड शेयर हिज और हर प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लमेटिक एरियाज एंड प्रॉब्लमेटिक इश्यूज विद यू। और इस इंटरव्यू से मालूमात आप तक पहुंचेंगी और ये जो इन्फॉर्मेशन होगी, इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप बेहतर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे एज ए करियर काउंसलर। अंडरस्टैंडिंग करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग इज़ टू लेट द स्टूडेंट्स नो अबाउट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ चूजिंग अ प्रोफेशन। किसी भी प्रोफेशन के प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं,
प्लस माइनस पॉइंट्स क्या हैं किसी भी प्रोफेशन के, इस हवाले से करियर काउंसलिंग हेल्प करती है। स्टूडेंट्स टेंड टू गेट ओवर एम्बिशियस अबाउट अ पर्टिकुलर जॉब because they have heard good things about it from their peers. स्टूडेंट्स ने, इंडिविजुअल्स ने, यूथ ने बहुत चीज़ें सुनी होती हैं एक दूसरे से, लेकिन उन्हें ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि पर्टिकुलर जॉब के हवाले से कौन सा प्रोफेशन ठीक रहेगा, कौन सा ठीक नहीं रहेगा, और उनकी अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं, उनकी अपनी इंटरेस्ट लेवल क्या है, क्या वो हर फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं या कोई पर्टिकुलर फील्ड उसने अडॉप्ट करनी है। इस हवाले से करियर काउंसलिंग हेल्प करती है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में। एंड देयर आर करियर काउंसलिंग सेशंस, डिफरेंट सेशंस हो सकते हैं आपके क्लाइंट्स के साथ जो कि हेल्पफुल साबित होंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरियस प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। And finally, career counselor gives them practical advice on those aspects they tend to overlook, जो कि वो जानना चाहते हैं कि these are the problems and they want a proper remedy and solution of those problems. So career counselor give them practical advice about those issues, how to solve it, how to handle it, what they have to do. So career counseling actually helps you understand your strength and weaknesses. Your aptitude, skill set, personality also plays a significant role in choosing an occupation. As a student, you tend to get distracted by money, peer pressure, other factors in selecting a career. आप career choice जब करते हैं तो उसमें पैसा देखते हैं, आप दोस्तों का प्रेशर देखते हैं, पेयर प्रेशर, दोस्त कह रहे हैं मुझे फ़लाँ दोस्त कह रहा है, ये दोस्त कह रहा है, वो यहाँ वहाँ पे जा रहा है। एंड देयर आर नंबर ऑफ़ फैक्टर्स फॉर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर करियर। तो इसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप खो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैंने करना क्या है इस सिचुएशन में। सो इन दिस सिचुएशन करियर काउंसलिंग हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो इस सिचुएशन में करियर काउंसलिंग आपकी मदद करेगी, आपको बताएगी कि बेटर डिसीजन मेकिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं और राइट टाइम पे राइट डिसीजन कैसे लिया जा सकता है जो आपके फ्यूचर के हवाले से बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक हो, बहुत ही यूज़फुल हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एज ए स्टूडेंट आप पढ़ रहे होते हैं, मसलन आप मैट्रिक कर रहे हैं और मैट्रिक के बाद आप क्या करेंगे, देयर इज़ अ नीड ऑफ काउंसलिंग। सो मैनी स्टूडेंट डोंट नो अबाउट द फ्यूचर प्लान्स, व्हाट टू डू आफ्टर मैट्रिकुलेशन। आपने एफएससी करनी है, प्री मेडिकल करना है, प्री इंजीनियरिंग करनी है, आपने आईसीएस करना है, आपने आईकॉम करना है, आपने एफए करना है, आपने आर्ट्स में जाना है या आपने साइंस में पढ़ना है, आपने डिप्लोमा करना है या मेडिकल प्रोफेशन में जाना है। तो इस सिचुएशन में आप बहुत परेशान होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि व्हाट टू डू नाउ। सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन काउंसलिंग हेल्प्स यू एंड प्रोवाइड यू द परफेक्ट solution of your related problems. How to handle those problems, what to do next, what is the best strategies, what I have to do. तो इन तमाम सवालों का जवाब आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करती है। और टीचर का रोल एज ए काउंसलर और करियर काउंसलर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि एक टीचर पढ़ाने के साथ साथ अपने स्टूडेंट्स की बेहतरीन तरीके से किस तरह से करियर काउंसलिंग कर सकता है ताकि उसके स्टूडेंट्स आने वाले वक्त के हवाले से बेहतरीन डिसीजन मेकिंग से गुज़र कर एक बेस्ट प्रोफेशन को सिलेक्ट और चूज़ करने के काबिल हो पाएँ। So who is career counselor? A career counselor is needed to chalk out the right combination for each student considering the strength and weaknesses. हम अभी बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स की वीकनेसेस क्या हैं, उनके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, उनके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वो इनके कौन से एरियाज़ हैं जिसमें वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं
जहाँ पे वो वीक परफॉर्मेंस दे सकता है, तो इसको आइडेंटिफाई करना और इसके हवाले से बेहतरीन डिसीजन मेकिंग करना और प्रॉपर रास्ता बताना, गाइड करना, ये करियर काउंसलर का काम है। सो करियर काउंसलर प्लेज अ प्राइम रोल इन हेल्पिंग इंडिविजुअल्स पुट देयर टैलेंट्स टू गुड यूज़ इन जॉब पोजीशन। वो एक अपना प्राइम रोल प्ले करता है ताकि वो हेल्प कर पाए इंडिविजुअल्स की, अपने स्टूडेंट्स की, अपने क्लाइंट्स की, कि वो उनका टैलेंट को सामने रखते हुए बेहतरीन एडवाइस दे सके कि वो किस तरीके से बेहतरीन जॉब को सिलेक्ट कर सकते हैं और कौन सी फील्ड को उन्होंने सिलेक्ट करना है। सो देयर इज़ प्रोसेस फॉर करियर प्लानिंग। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये चलता रहता है। देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। फॉर एग्जाम्पल, स्टेप 1, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। व्हाट आर माई इंटरेस्ट, स्किल्स, वैल्यूज़ एंड पर्सनैलिटी स्टाइल, मेरी इंटरेस्ट क्या है, दिलचस्पियाँ क्या हैं। व्हाट आर माई स्किल्स, व्हाट आर द वैल्यूज़ एंड व्हाट इज़ माई पर्सनैलिटी स्टाइल, मेरी शख्सियत कैसी है, मेरा स्टाइल क्या है। तो इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है फर्स्ट स्टेप में। देन कम्स सेकेंड स्टेप, व्हाट डू आई वांट, मैं क्या चाहता हूँ। व्हाट आर माई ऑप्शंस, मेरे सामने कितने ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं। एंड नंबर नेक्स्ट स्टेप, हाउ डू आई गेट देयर, मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा। व्हाट एम आई विलिंग टू डू, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। एंड स्टेप 4, व्हाट इज़ माई प्लान टू गेट टू माई गोल, और वहाँ पहुँचने के लिए प्लान क्या है। जो मैंने गोल सेट किया हुआ है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए, उसको टारगेट करने के लिए व्हाट इज़ प्लान, प्रॉपर प्लानिंग। सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, करियर प्लानिंग। तो ये पूरी ज़िंदगी चलता रहता है, आप साथ साथ प्लानिंग करते रहते हैं और अपनी इंटरेस्ट, स्किल्स, वैल्यूज़, पर्सनैलिटी के मुताबिक, अपनी स्ट्रेंथ्स के मुताबिक, अपनी इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड लेवल के मुताबिक आप आगे बढ़ते हैं और प्लानिंग करते रहते हैं ताकि आप बेहतर से बेहतर कैरियर को ऑप्ट कर सकें। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर एज अ काउंसलर। किसी भी अदारे में, तालीमी अदारे में, वो स्कूल हो सकता है, वो कॉलेज हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी हो सकती है, उसमें एक टीचर जो पढ़ा रहा है, उसको पढ़ाने के साथ साथ उसका एक और रोल, जो टीचर रोल एज काउंसलर है, वो अपना रोल किस तरीके से परफॉर्म करेगा और वो रोल कैसे प्ले करेगा, इसके बारे में बात करेंगे हम। It helps students understand and overcome social or behavioral problems through individual and group counseling. तो पहला रोल क्या है, वो क्या कर सकता है, वो स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है कि वो अपने सोशल प्रॉब्लम्स को, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर पाएँ, और इसके लिए वो काउंसलिंग सेशंस अरेंज कर सकता है, वो उनके साथ बैठ के डिस्कशन कर सकता है, वो ऑब्जर्वेशन से डाटा हासिल कर सकता है, वो इंटरव्यू कर सकता है अपने क्लाइंट्स का, स्टूडेंट्स का, ताकि वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और सोशल प्रॉब्लम्स और वो इश्यूज़ सामने आ सकें, ताकि उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जा सके। एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल एंड स्मॉल ग्रुप काउंसलिंग बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड्स। व्हाट आर द स्टूडेंट्स नीड्स, स्टूडेंट्स की ज़रूरियात क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं। द टीचर प्रोवाइड्स individual and small group counseling to their students, and working with students to develop skills such as organization, time management and effective study habits. एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ काउंसलिंग के ज़रिए वो स्किल्स डेवलप कर सकता है जो उसको काम आएंगी। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, उसने किस तरीके से अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज रखना है। जैसे टाइम मैनेजमेंट की स्किल है, किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है उसने, और किस तरीके से उसने अपने स्टडी हैबिट्स को बेहतर बनाना है, इफ़ेक्टिव स्टडी हैबिट्स में कन्वर्ट करना है अपनी हैबिट्स को। और यहाँ पे ख़ास तौर पर टाइम मैनेजमेंट एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
कि स्टूडेंट्स अपने टाइम को बेहतर तौर पर किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे, वो टाइम वेस्ट ना करें, वो ज़ाया ना करें अपने वक्त को, और जो भी उनके पास टाइम है उस टाइम का बेस्ट यूज़ किया जाए, पॉजिटिव यूज़ किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हासिल कर सकें। तो इसके हवाले से काउंसलिंग हेल्प करती है और टीचर एज ए काउंसलर अपने स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है कि वो किस तरीके से अपने टाइम को बेहतरीन मैनेज कर सकते हैं। Evaluating students' abilities and interest through aptitude assessment, interviews and individual planning. स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट को इवेलुएट करना, उसका जायज़ा लेना और उनके एप्टीट्यूड असेसमेंट करना कि फ्यूचर के हवाले से उनकी दिलचस्पियाँ क्या हैं, और इंटरव्यू टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है, इंडिविजुअल प्लानिंग के ज़रिए इवेलुएट किया जा सकता है। Also collaborating with teachers, administrators and parents to help students succeed. इसके साथ साथ दूसरे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस स्टूडेंट को, आपके क्लाइंट को, स्टूडेंट को, लर्नर को, जो आपके अलावा दूसरे टीचर्स पढ़ा रहे हैं किसी भी अदारे में, तो उनके साथ बेहतरीन राब्ता रखना, रेपो क्रिएट करना, एक बेहतरीन माहौल पैदा करना कि जिसमें आपस में टीचर्स भी शेयर कर सकें बच्चों के मसाइल, एडमिनिस्ट्रेटर्स, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट और हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो चला रहे हैं उस अदारे को, वो उनके साथ भी शेयरिंग की जाए। इवन के पेरेंट्स को इनवाइट किया जाए, पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें इनविटेशन दी जा सकती है, उनको इनवाइट किया जा सकता है और उन पेरेंट्स से भी उनके बच्चों के हवाले से राय ली जा सकती है और वो मसाइल सुने जा सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं उन बच्चों को, किन फील्ड्स में हैं, किस तरह के हैं, ताकि बच्चों की कामयाबी में हेल्प की जा सके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। एक और रोल जो टीचर का एज ए काउंसलर और हो सकता है वो है कि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वो डिस्कशन करें, such as bullying, drug abuse or planning for college or career after graduation. आपने मैट्रिक करने के बाद, आपने ग्रेजुएशन करने के बाद कौन सा करियर चॉइस चूज़ करना है, किस फील्ड में आपने जाना है और कौन सी नेगेटिव चीज़ें हैं जिससे आपने बचना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। एंड आल्सो रेफरिंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टू रिसोर्सेज आउटसाइड द स्कूल फॉर एडिशनल सपोर्ट। स्कूल में एक हद तक आप अपनी ज़िम्मेदारियां अदा कर सकते हैं और काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को, और इस स्कूल से बाहर एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत अगर बच्चे को है तो वो कौन से रिसोर्सेज हैं जो आउटसाइड स्कूल हेल्प कर सकते हैं, तो इसके हवाले से भी गाइडलाइन देना और उनको इन्फॉर्म करना, ये भी एक ज़िम्मेदारी है और रोल है टीचर का एज ए काउंसलर। And now we are discussing the role of teachers specifically as career counselor. एक करियर काउंसलर के तौर पर टीचर अपना रोल किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। So use aptitude and achievement assessment to help clients evaluate their interests, skills and abilities. हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी इंटरेस्ट क्या हैं, what are the skills they have and what sort of abilities they have, उसके हवाले से देखना और उनको गाइड करना, उनको अंडरस्टैंड करना, इवेलुएट करना, ये भी एक टीचर की ज़िम्मेदारी है एज ए करियर काउंसलर। एंड इवेलुएटिंग क्लाइंट्स बैकग्राउंड, आपके जो क्लाइंट है, जो स्टूडेंट है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी ट्रेनिंग क्या है, ताकि आप एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव सामने ला सकें और उसको प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकें। एंड गाइड clients through making decisions about their careers, such as choosing a new profession and the type of degree to pursue. आपने किस डिग्री में जाना है, किस फील्ड में जाना है, आपने कौन सा नया प्रोफेशन चूज़ करना है जो कि बेस्ट सूटेबल आपके लिए हो सकता है, इसके हवाले से डिसीजन मेकिंग करना और एडवाइस प्रोवाइड करना। हेल्प क्लाइंट्स लर्न जॉब सर्च स्किल्स, अपने क्लाइंट्स को वो टेक्निक्स और स्किल्स समझा देना जिससे वो डिफरेंट जॉब्स को सर्च कर पाए, और ये भी बताना कि हाउ टू लोकेट एंड अप्लाई फॉर डिफरेंट जॉब्स,
किस तरीके से डिफरेंट जॉब्स को आपने लोकेट करना है, अप्लाई करना है, एंड व्हाट आर द करेक्ट प्रोसीजर फॉर अप्लाई, और वो स्ट्रेटजीज़ क्या हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, रेज़्यूमे कैसे बनानी है आपने। इवन टीचर एज ए करियर काउंसलर guide how to resolve problem in the workplace such as conflicts with bosses and co-workers. For example, आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, कोई भी शोबा आप अडॉप्ट करते हैं और उस प्रोफेशन में आप जब होते हैं तो देयर मे बी डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड दोज कॉन्फ्लिक्ट्स मे बी विद योर बॉस, विद द को-वर्कर्स, विद योर कॉलीग्स। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो मसाइल हैं, इन मसाइल को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स का कैसे हल निकाला जाए और किस तरीके से आपस में बेहतर रिलेशनशिप से उस प्रोफेशन के लिए यूज़फुल मेंबर साबित हुआ जाए, ये सारी टेक्निक्स जो है वो टीचर एज ए करियर काउंसलर अपने क्लाइंट को बताएगा। एंड हेल्पिंग क्लाइंट्स सिलेक्ट एंड अप्लाई फॉर एजुकेशनल प्रोग्राम्स टू ऑब्टेन द नेसेसरी डिग्रीज, क्रेडेंशियल्स एंड स्किल्स। एंड हेल्पिंग द क्लाइंट सिलेक्टिंग एंड अप्लाइंग फॉर एजुकेशनल प्रोग्राम्स, वो आपका क्लाइंट डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स में किस तरीके से अप्लाई कर सकता है, कौन से एजुकेशनल प्रोग्राम्स बेस्ट सूटेबल हो सकते हैं उसके लिए, इसके हवाले से भी उसकी काउंसलिंग की जाए। सो देयर आर सम इश्यूज इन काउंसलिंग, मल्टीकल्चरल इश्यूज इन करियर काउंसलिंग। बिकॉज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, स्टूडेंट्स having different issues. So we are discussing some of them. For example, students face diverse challenges. For example, language barriers, value system related to family, traditional role models, career choices. इस तरह के बहुत से प्रॉब्लमेटिक कंसर्न्स आ सकते हैं आपके क्लाइंट को, यानी आपका जो स्टूडेंट है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है। क्यों कर सकता है? बिकॉज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, कोई शहर से आ रहा है, कोई देहात से आ रहा है, और कोई मिडिल क्लास से आ रहा है, कोई अपर क्लास से आ रहा है। तो इस हवाले से लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वैल्यू सिस्टम डिफरेंट होता है, फैमिली सिस्टम डिफरेंट होता है, इसी तरीके से रोल मॉडल डिफरेंट हो सकते हैं, करियर चॉइसेस डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम राइज हो सकते हैं। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, आप एंग्जाइटी फील करते हैं, आप डिप्रेस होते हैं, आप स्ट्रेस फील करते हैं, आप परेशान रहते हैं, तो इस तरह के मसाइल भी आ सकते हैं। और ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंट हो सकते हैं, इनकी नेचर डिफरेंट हो सकती है। तो इनको किस तरीके से आप डील करेंगे, हैंडल करेंगे, ये भी करियर काउंसलर का एक रोल है। और टीचर ये रोल एज ए करियर काउंसलर बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकता है। एंड टेकिंग अ पैसिव एटीट्यूड इन देयर करियर डेवलपमेंट प्रोसेस, और ओवरऑल आप करियर डेवलपमेंट प्रोसेस में अपना बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ सकते हैं और एक रैपो बिल्डिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं, एक फैसिलिटेटर का रोल अदा कर सकते हैं, एक गाइड का रोल अदा कर सकते हैं, ताकि आपके क्लाइंट को, यानी आपके स्टूडेंट लर्नर को बेहतर से बेहतर काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए।